Okay. All right. Let's start with the numericals. Take one question down. A vessel is in upright condition. Displacement 12,000 tons. She has a kg of 7.64 meters. The values of GZ are as follows. Theta 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. GZ in meters. Below them write down 0, 0.19, 0.50, 0.94, 1.16, 1.03, 0.60, 0.06. $400 tons of cargo is then redistributed so as to move from port to starboard side through a distance of 10 meters and upwards through a distance of 5 meters. Draw the GZ curve and find number 1, list number 2, the residual dynamical stability. Residual dynamical stability up to 30 degrees angle of heel. Up to 30 degrees angle of heel.
All right. So let us get going. So let us first calculate GGH and GGV. So GGH will be W DH upon capital W is equal to 400. DH will be how much? 10 meters. 10 meter upon 12,000. So GGH is equal to 0.333. 0.333 meters. Similarly, GGV will be 400 into dV will be how much? 5 meters. 5 upon 12,000. 0.166. How much? So 0.1666. 166. So correction due to horizontal shift of G. Will be negative GGH cos theta is negative 0.333 cos theta. And similarly, correction due to vertical shift will be how much? Negative. Again negative GGV sin theta is equal to negative 0.166 sin theta. यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? Whatever we have done so far, is this all clear? Yes, sir. Okay. Now मुझे लिस्ट निकालनी है. जनरली मेरी लिस्ट जनरली 30 डिग्री से नीचे ही होनी चाहिए. Generally, by and large. So let me make a table now. So making a table. First column, theta, 0, 10, 20, 30. Then next column, uncorrected, GZ in meters. Whatever is given in the question is uncorrected. Zero, 0.19, 0.50, 0.94. So I'm writing my formula now. Uncorrected GZ minus GGV sin theta. That is my second column.
So this will be minus 0.166 sine 0 is equal to sine 0 is 0, so this value will be 0. Next column, minus GGH cos theta, GGH 0.333 cos of 0. Cos of 0 is 1. So the resultant of this will be minus 0.333. And the last column title will be corrected GZ in meters. So this minus this minus this will give me corrected GZ value, which is this line understood by all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. There is small gz होगा ना, because this is uncorrected gz, the second column. Yeah. So अब now the question में जैसा लिखा हुआ है मैं वही follow कर रहा हूँ, मैं उसको कुछ बदल नहीं रहा. But we have to try and understand कि whatever is given in the question is uncorrected. It is at a kg equal to this, but my kg has shifted, has gone up by so many meters. The g has gone up by so many meters. Is that okay? Okay, sir. Now the next one will be minus 0.166 sin 10. यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप. minus 0.029. 0.029. So similarly, minus 0.333 cos of 10. इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी. Minus 0.325. एंड अब इस 0.19 माइनस दिस वैल्यू यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आएगा. So 0.328 है, minus 0.328 cos. माइनस नहीं cos का सर, cos का वैल्यू. अच्छा ओ ये 325 नहीं है. ओके 328. ओके 328 0.333 cos 10. अब इसको पूरी लाइन को कंप्यूट करो. 0.19 minus this. 0.167. Minus 0.167. Minus 0.167. Okay. Okay. So this is fine.
देन नेक्स्ट पे आ जाओ। -0.057 minus 0.0. 57 सर, 0.057 माइनस। अगले की वैल्यू आएगी सर -0.313। रिजल्टेंट आ गया सर -0.342। ये कुछ गलती हो गई है। सर इसमें पॉजिटिव आया हाँ 0.130। हाँ, इसमें कुछ गलती हुई है। और सर ये cos थीटा में -0.3129 है। कॉस थीटा में 3.313. 319 और 313। 313, ओके, तो माइनस, ओके, so 0.5 माइनस दिस माइनस तो ये 0.130 आ गया। 0.130 13 पॉजिटिव में 13. पॉजिटिव में 130, ओके। एक और ले लेता हूँ। -0.083 नेगेटिव। 083 नेगेटिव, ओके। -0.268। 0.268, ओके। रिजल्टेंट पॉजिटिव 0.584। So 288 minus 0.288. 288, ओके ओके, तो इसका भी आंसर बदल जाएगा। 569 सर। 569, ओके। सो क्योंकि मेरे को रेजिडुअल डायनामिकल स्टेबिलिटी 30 तक बनानी है, तो मैं 30 तक ही ले रहा हूँ। और ऑल्सो नोट ये करना है कि जब मेरा जीजेड नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर आएगा ग्राफ में, तो मेरी लिस्ट उसके दरमियान होगी। इज दिस अंडरस्टूड? यस सर। जो मेरा T3 कर्व है वो नीचे से आ रहा होगा, और जब नीचे से ऊपर जाएगा, जहां पे वो बेसलाइन को काटेगा, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो 10 और 20 के बीच में आएगी मेरी लिस्ट। एग्रीड? Yes sir. ओके, ऑलराइट। अब मेरे को ग्राफ बनाना है। ग्राफ जी थीटा वर्सेस जीजेड। अब मुझे ग्राफ पे जाना है, तो व्हेन आई गो टू ग्राफ, सर एक बारी लिस्ट का बताएंगे कि लिस्ट हमने माइनस और प्लस का जो बाउंड्री है उसमें ही क्यों लिया? मेरा जो T3 कर्व है, इफ यू रिमेंबर, वो नीचे से आता है, नेगेटिव से वैल्यू से आ रहा है, और जहां पे वो ऊपर जाता है वो पॉजिटिव है, तो वो जो जहां पे काटता है वहां पे मेरी लिस्ट आती है। ओके सर, ओके। तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये मेरा इस दरमियान में आएगा, 10 और 20 के बीच में। ओके सर। तो इवेंचुअली जो मेरा ग्राफ बनेगा वो T3 बनेगा, ये ऐसा बनेगा, क्योंकि इसमें लिस्ट इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में। तो सर लिस्ट के क्वेश्चन में तो सर हमेशा ऐसे ही चेक हो जाएगा ना सर, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो जहाँ बिल्कुल पे ठीक, कट करेगा वो लिस्ट बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो मेरे को आंसर यहीं पे मिल जाएगा। एक मैंने और एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि मेरे को डायनामिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए। ठीक है, इज दैट ओके?
Yes, sir. ओके, अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं ग्राफ पेपर पे। तो स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो GZ कर्व, स्केल, x एक्सिस 10 डिग्रीज इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, जो भी आप चुनेंगे। y एक्सिस मैक्सिमा आपका 0.56 है, मिनिमा आपका -0.3 है, दोनों को आना चाहिए। तो both should come on your graph paper. So make your x-axis about 1/3 of the page from bottom. तो 0.3 भी आना चाहिए, 0.5 भी आना चाहिए। So you can choose a scale 0.10 meter is equal to dash centimeter. So 0, 10, 20, 30. Similarly, -0.10, -0.20, -0.30, +0.10, +0.20, +0.3, +0.4, +0.5 and +0.6. Now, because मेरी लिस्ट 10 और 20 के बीच में है, so 10 और 20 के बीच में I will draw micro graduations. ये हुई 15, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. दिस इज बिकॉज मेरी लिस्ट जो है 10 और 20 के बीच में आएगी, तो फॉर बेटर एक्यूरेसी। दस की 0 की वैल्यू, हाँ जी। फिर इस क्वेश्चन में अब ये 10-20 ग्रेजुएशन है, तो नोटबुक के हिसाब से सर फिर कितने नॉर्मली लें सर? जो भी उसमें दी हुई है, उसने जो स्पेसिंग दी हुई है, ये 10-20 डिग्री की, 10 की डिग्री की दी है, आप 10 डिग्री ले लो। नहीं सर, वो सेंटीमीटर में सर, जैसे 0.10, अब कितना -10 कितने लें सर अब? That depends on the width of the graph paper available to you. भाई आपको 30 को accommodate करना है as per the width of the graph paper available to you. You can take 10 degrees equal to 10 centimeters also, but that won't help you ना। 30 centimeters की आपके पास में width ही नहीं होगी शायद। So you will have to choose 10 degrees is equal to maybe 5 centimeters as per the width available of the graph paper. ओके सर। वो पे भी प्रैक्टिस करते हुए ग्राफ पेपर जिस पे करोगे प्रैक्टिस, उसकी विड्थ मेजर कर लेना पहले से ही, और अपने ये स्केल को फ्रीज कर देना अभी से ही, और फिर वही स्केल लेते रहना बार बार। So 0 degree is equal to -0.33. So 0 degree is equal to -0.33. तो 0.3 के नीचे लगा दिया।
सर एक बार स्केल समझ नहीं आ रहा सर, स्केल कैसे बनाया आपने? मैंने तो स्केल ब्लैंक छोड़ दिया आपके लिए। आपकी जो विड्थ होगी पेपर की, जो आपको मिलेगा, अगर ये ग्राफ पेपर है सपोजिंग, तो ये कितना आपके पास अवेलेबल है विड्थ, उसके हिसाब से आप ले लो। 30 डिग्रीज इसमें आना चाहिए, तो 30 डिग्रीज विल बी इक्वल टू लेट्स से 15 सेंटीमीटर। It could be 10 centimeters also. Depends on how much width you are going to cover of your graph paper. वो तो आपके हाथ में है ना। सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्केल एक ही होगा या अलग अलग ले सकते हैं? मेजर करने कोशिश करोगे सेम ही रखो। ओके सर। कोशिश करो ताकि इक्वल रहे स्केल, लेकिन दोनों के यूनिट्स अलग हैं, प्लीज रिमेंबर दैट। तो जैसे नॉर्मली 30 डिग्री तक बनाते हैं सर क्वेश्चंस में, या जैसे नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन, तो सर एक्स तो बड़ा ले लिया था कि थोड़ा ग्राफ खुला बन जाए, बट ये जैसे अभी 0.6 से 0.9, तो ये 90 हमें अकोमोडेट करने हैं, तो ये 2-2 सेंटीमीटर जैसे ले लिया और वो 5 सेंटीमीटर, तो सर मुश्किल हो जाएगी क्या फिर कैलकुलेट करने में, या फिर दोनों ही इक्वली ले लें? फिर आपको इन दोनों को अकोमोडेट करना है, मैक्सिमम और मिनिमा को ग्राफ पे वाई एक्सिस के, और इसको भी अकोमोडेट करना है। दोनों को अकोमोडेट करना है आपने, कोशिश आपको ये रखनी है। फिर तो आएगा ही नहीं, ये तो 9.4 तक है। ये वाले की स्केल नहीं ले रहा मैं, ये का स्केल है। आई एम ड्रॉइंग विद द करेक्टेड जीजेड। ओके ओके सर, ओके, हाँ ठीक ठीक। आई एम नॉट टेकिंग विद द अनकरेक्टेड जीजेड, डोंट मिक्स इट अप। अब अनकरेक्टेड जीजेड को भूल जाओ, इसलिए मैंने 0.6 तक ही लिया है खाली, ताकि मेरा 0.569 उसमें आना चाहिए। ये मेरा मैक्सिमा है, ये मेरा मिनिमा है। नोट करो, मैंने वही स्केल लिया है, जितना इसका लिया उतना ही इसका भी लिया। बना लिया सर 2 सेंटीमीटर के हिसाब से। फिर -0.33 ले लिया इस पे, 0 पे। 10 डिग्री की वैल्यू -0.16 है, 10 की वैल्यू -0.16। बीस की वैल्यू +0.13, तीस की वैल्यू +0.569, अब इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करना है बड़ी केयरफुली, एंड इट शुड फॉर्म अ कर्व। इट शुड नॉट बी ऐसे करता हुआ, ये लाइनें ऐसे ज्वाइन करता हुआ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ कर्व। Therefore, इसको ज्वाइन किया, ये ऐसे बनेगा। अब ये मेरा 15.5 डिग्री के करीब आ रहा है, किसी का 15 आएगा, किसी का 16 आएगा, ऑल आर ओके। सर एक बार फिर से बताना सर, अभी दोबारा से 15 डिग्री ले तो 15.2 जो फ्री हैंड से ड्रॉ करना है सर, वो दोबारा से बताना सर कैसे लेना है। मैंने इस पॉइंट से ले रहा हूं फ्री हैंड, so don't make it like straight lines. It cannot be a straight line, so it has to be a free hand curve.
It should fall a part of a curve. सर इसको आपने 0.3 से ही क्यों मतलब नीचे वाले से स्टार्ट किया नेगेटिव वाले साइड? अरे भाई जीरो की मेरी वैल्यू क्या थी? जीरो की वैल्यू है भाई, जीरो की वैल्यू। मेरी जीरो की क्या वैल्यू है? थीटा जीरो। जीरो पे मेरी करेक्टेड जीजेड की क्या वैल्यू है? 0.33। हाँ तो 0.33 माइनस 0.33। मैंने 0.30 के नीचे ले लिया ना। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाला आ गया समझ में। फिर उसके बाद में नेगेटिव 0.16 ले लिया, 0.16 ले लिया 10 की वैल्यू। ठीक है सर, ये भी आ गया। फिर 20 की वैल्यू पॉजिटिव 0.13, ये पॉजिटिव पे चला गया। सर 16 डिग्री है। डन। किसी का 16 आएगा, किसी का 17 आएगा, किसी का 15 आएगा, किसी का 14 आएगा, ऑल आर ओके। 16 ले लेता हूँ, 16। तो ये मेरा पहला आंसर हो गया। My weight had shifted from port to starboard. तो मेरी लिस्ट क्या होगी? 16 डिग्री स्टारबोर्ड। स्टारबोर्ड। अगर वेट मेरा स्टारबोर्ड टू पोर्ट किया होता तो लिस्ट मेरी होती 16 डिग्री पोर्ट। पोर्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके। सर डायग्राम इस तरफ ही बनेगा ना? इसी तरीके से बनेगा पोर्ट स्टारबोर्ड। डायग्राम, यही बनेगा। सर ये पोर्ट स्टारबोर्ड का बता दो एक बार लिस्ट। 16 डिग्री स्टारबोर्ड। क्वेश्चन में वेट कहां से कहां मूव किया? पोर्ट टू स्टारबोर्ड। ओके सर, पोर्ट सर। तो जहां जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन में लिखा है वही यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। ओके सर। ओके। अब ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में आ रहे हैं। रेजिडुअल डायनामिकल स्टेबिलिटी। डायनामिकल स्टेबिलिटी के लिए मुझे एरिया अंडर द कर्व चाहिए। एरिया अप टू 30 डिग्रीज, यानी कि ये एरिया चाहिए मुझे। आई नीड दिस एरिया। तो सिम्पसन रूल आ जाएगा। मुझे 16 से 30 का एरिया चाहिए। क्विकेस्ट वे इज टू अप्लाई 141 सिम्पसन रूल। सो 16 और 30 के बीच में मिड पॉइंट क्या आता है? सोलह और 30 का सेपरेशन है 14 डिग्री का। 23 आता सर। 23। तो 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7, 16 एंड 7 इज 23। तो 23 डिग्रीज पे एक्स एक्सिस पे ये 23 डिग्रीज मैंने लिया। इधर पे मैंने एक परपेंडिकुलर इरेक्ट किया, ये मैंने परपेंडिकुलर इरेक्ट किया। जहां पे इसने कर्व को काटा, लेफ्ट जाके उसकी मैंने वैल्यू उठा ली। तो मेरी कोई वैल्यू आ रही है 0.23। किसी की कुछ और भी आ सकती है, किसी की 0.25 आ सकती है, किसी की 0.24 आएगी। तो इट्स ओके, ऑल इज फाइन। आई एम जस्ट टेकिंग 0.23 वैल्यू।
Yes. ओके 0.23. ठीक है. अब नाउ आई विल मेक सिम्पसन्स का टेबल. सो पहला कॉलम थीटा, उसमें पहली वैल्यू 16 डिग्री, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा 16. नेक्स्ट कॉलम इज माय ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट इज नथिंग बट GZ इन मीटर्स, करेक्टेड वाला. तो 16 पे मेरा GZ की वैल्यू 0 थी. सिमिलरली 23 पे मेरी GZ की वैल्यू आई 0.23 0.23. और 30 पे मेरी वैल्यू मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करी हुई है, दैट इज 0.56. पॉइंट क्या थी 30 की मेरी वैल्यू 0.569. 569. इज दिस ओके विद एवरीबडी? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट कॉलम सिम्पसन मल्टीप्लायर लगा रहा हूं 141, क्योंकि मैं रूल 1 लगा रहा हूं. दैट इज द इजीएस्ट वन टू अप्लाई. और लास्ट कॉलम मेरा होगा एरिया फंक्शन. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को एरिया फंक्शन मिलता है. 1 0 0 0.23 इंटू 4 कितना आता है? 0.92. 0.92. पॉइंट 92. 92. 92. 92. और इसका आ गया 0.569. इनको टोटल कर दो, ये मुझे देगा SOP 1 1.489. 1.489. ओके, ऑलराइट. अब सर ये आपने नीचे के लिखा है SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, इनको टोटल कर रहा हूं मैं. तो इट इज, ये प्रोडक्ट है, इसको ऐड किया तो सम ऑफ प्रोडक्ट आ गया. ये SOP हो गया. Okay. Now, area is given by this formula for rule 1, which is H by 3 into SOP 1. H is the common equal interval, which is how much? 7 degrees. जो इनकी सेपरेशन है थीटा की, that is my H. That is the common equal interval. So is equal to 7 degrees divided by 3 into 1.489. Get rid of the degrees. Convert it into radian. So divide by 57.3. Remember our first class? 1 degree is equal to 1 upon 57.3 radian. ये समझ में आ गया? This will give you, इसकी वैल्यू निकालो. एंड ये आंसर आपका मीटर रेडियन में आएगा, MR. 0.061. 0.061. So many meter radian आ गया. This is the area.
So therefore, residual dynamical stability is displacement into area under the curve is equal to 12,000 ton into 0.061 meter radian is equal to so much, जो भी वैल्यू आती है, so many ton meter radian. सेवन 727.6. 727. So many ton meter radian is the amount of work done in rigging this ship. सर ये 57.3 क्यों आया था? कहाँ पे? ये 50 मल्टी जो नीचे डिवाइड किया एरिया में, ये पहली क्लास जब हमने करी थी तो उसमें if you remember 360 degrees is equal to 2 pi radian. ये 732 आ रहा है. Okay, 732. Okay. नहीं सर 727 ही है सर 727. अच्छा, ओके. सर 732 आ रहा है. देख लो जरा 12,000 वो इसलिए सर वो अगर पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आया तो 727 आता है और 061 से करते तो ये आता है. अच्छा, ओके ओके. तो अगर आपने वो कैलकुलेटर का पूरा ले लिया तो देन थोड़ा सा फर्क आ जाएगा. दैट डजंट मैटर. ठीक है Okay. सर, सही कह रहे हैं. Okay. 732 भी आ रहा है 27. तो सर Okay. क्वेश्चन में वहां पे क्या करना है सर? 3 तक ही लेके चलें या फिर क्या करें? 3 तक लेके चलो. 732 इज राइट. ओके ठीक है, 3 तक लेके चलो. सर ये आंसर तो जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन करेंगे तो आंसर मतलब वो वैसा नहीं है सर, एग्जैक्ट वैसे आना चाहिए एग्जाम नहीं, में. ऐसा कोई- हमारा जो इस पेपर में कुछ नहीं है. ये जो ये वाला क्वेश्चन है जीजेड में, बिकॉज यहाँ पे हर चीज वेरी करने वाली है ना. मैंने लिस्ट भी मेरी वेरी करेगी, किसी की 15 आएगी, किसी की 17 आएगी, ये ऐसा ग्राफ में वेरिएशन भी होगा. तो वेरिएशन होगा. फिर ये किसी का 0.23 आएगा, किसी का 0.25 आएगा, तो वेरिएशन तो होगी. दैट डजंट मैटर. किसी का ये मेथड से होना चाहिए वैसे. मेथड इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस होल राइट. इसमें और सर इससे उस जो फिर हमने स्केल लिया उसका कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ बताने के लिए है, वरना तो कोई उससे मल्टीप्लिकेशन या कुछ तो है नहीं ना. नहीं, स्केल की इम्पोर्टेंस ये है कि मेरा जो ये ग्राफ है, ये वाला, ये ग्राफ अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री के इंक्लाइन पे आना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ये जो ग्राफ है ये ऐसे बन जाए. दिस इज रॉन्ग बिकॉज that means I've used too long a scale along x-axis and too short a scale along y-axis. तो ये गलत है. This is not right. मतलब सर जो ग्राफ का ट्रेंड होगा वो बेसिकली वैसे T3 की तरह ही आना चाहिए. T3 की तरह आना चाहिए. Similarly ये भी नहीं होना चाहिए. Here the scale along x-axis is too small as compared to the scale along y-axis. तो ये भी गलत है. तो इसलिए मैंने बोला dy should be equal to dx. That means the scale along the x-axis and the scale along the y-axis को almost equal रखना. Almost. थोड़ा सा minor variation हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको ऑलमोस्ट इक्वल रखना ताकि ये जो इंक्लाइन आए ये अप्रोक्सीमेटली 45 आए. देन यू नो यू आर ऑन द राइट ट्रैक. सर ये एसएम और एरिया फंक्शन जो करवाया आपने वो अभी जून बैच में नहीं हुआ है तो हाँ, वो दैट आई विल बी डूइंग. अभी अगस्त में कराऊंगा आपको. आई विल बी डूइंग दैट. अभी सिम्पसन्स रूल्स अभी होगा आपका, तो आई विल बी डूइंग दैट. तो सर अभी के लिए बस ये मेमोराइज कर ले क्या, ऐसे करना है? अभी फॉर द टाइम बीइंग आप खाली मेमोराइज कर लो. इसकी जो एप्लीकेशन जब वहां पे मैं करूंगा, जो सिम्पसन कराऊंगा, तो बहुत सारे आप एरियाज निकालोगे, तो ये सारा का सारा आपका रिवाइज हो जाएगा उस वक्त. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस होल थिंग. अभी फॉर द टाइम बीइंग जस्ट मेमोराइज इट लाइक दिस. देन व्हेन आई डू द सिम्पसन रूल, वहां पे बहुत सारे एरियाज निकालोगे आप, तो ऑल कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स विल बी डन.
ये एच को भी निकालना भी जो है ना, ये भी वहां पे करोगे। सर जो ये वाला रूल लगाया है, इस रूल का नाम है कुछ जो यहाँ पे लगाया सिम्पसन के कुछ नंबर? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1। ये रूल नंबर 1 है। इसमें जब भी आप निकालोगे डायनेमिकल स्टेबिलिटी और इसमें, तो इसमें रूल नंबर 1 ही यूज करोगे और कोई रूल यूज करोगे भी नहीं, क्योंकि मेरे को जो सबसे जल्दी मिलता है वो ये रूल 1 है। बिकॉज हियर यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि कितना टाइम लग गया टू कैलकुलेट, दिस अ वेरी लेंथी क्वेश्चन। सो उस कैलकुलेशन का वो टेबल करने में जाने में उसी में ही 15 मिनट लग जाते हैं, और फिर उसके बाद में ग्राफ बनाना, फिर ग्राफ से इंटरप्रेट करके निकालना, तो मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट 35 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन, 30-35 मिनट। तो ये आपका शुरू का क्वेश्चन नहीं होगा, ये आपका ओपनिंग बैट्समैन नहीं है। हालांकि कोई टेक्निकल चीज है ही नहीं, लेकिन टाइम बहुत लेता है। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। यस सर। ओके सर लेकिन क्वेश्चन में ये दो चीजें पूछते हैं, लिस्ट और ऐसा अगर आएगा तो लिस्ट और ये स्टेबिलिटी। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जनरली खाली लिस्ट ही पूछेंगे, मेजॉरिटी। सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहाँ से? पास्ट पेपर से शुरू कर दो। ओके, जस्ट स्टार्ट स्ट्रेट फ्रॉम पास्ट पेपर। सर जैसे पास पेपर में आंसर नहीं आता। पास्ट केजी पेपर जैसे यहाँ में पे से ए शेप के क्वेश्चंस करना, हिंड शेप के मत करना, अभी वो मैंने अभी कराया नहीं है आपको। सर जैसे यहाँ पे केजी जैसे 7.64 थी इस क्वेश्चन में, और उसी में वो खुद केजी देते हैं कि अब केजी 6.8 है। अब अगर पहले 7.64 थी, अब दे दी फाइनल केजी 6.8 है, हाँ जी तो सर। तो जीजीवी क्या हो गई? जीजीवी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो नहीं 7.6 से 6 पॉइंट समथिंग पे चला गया, तो सर सपोजिंग 7.6 थी, ठीक है। अब जीजीवी अब सॉरी, पहले 7.6 थी, अब उसने बोल दिया है कि अब 0.67 हो गई है, 7.67 हो गई है। नहीं, गलत बोल गया, सॉरी। 7.6 थी, अब 6.7 हो गई है। सर तो प्लस हो जाएगा ना? जीजीवी पॉजिटिव हो गई सर। तो जीजीवी नीचे जा रही है। हाँ जी सर, और नीचे जा रही है तो ट्रायंगल बढ़ रहा है, पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव हो गई। अच्छा, 7.6 माइनस 6.7, यानी कि जीजीवी 0.9 है। 0.9 सर। करेक्ट। तो डायरेक्टली आपको जीजीवी दे दी उसने क्वेश्चन में, तो फिर मेरा वाला जैसे ये डब्ल्यू डीवी अपॉन डब्ल्यू करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीजीवी डायरेक्टली मिल गई आपको फिर तो 0.9। सीधा टेबल बना सकते हैं ना सर। तो सीधा टेबल बना दोगे, सीधा टेबल बना दोगे, ठीक है। ओके सर। है ना? सो दो तरीके के क्वेश्चन हैं, या तो आपको देगा 400 टन मूव किया, अप इतना, डाउन इतना, डिस्टेंस इतना, दैट मीन जीजीवी जीजीएच निकालने को बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि वेट मूव किया एंड फाइनल केजी इतनी हो गई, तो हॉरिजॉन्टल वाला भी आएगा इसमें, हॉरिजॉन्टल भी मूव कर दिया। अगर सपोजिंग हॉरिजॉन्टल का दिया ही नहीं उसने कोई डेटा, खाली वर्टिकल दिया, तो जीरो हो जाएगा ना सर जीजीएच? तो वो वाला जीरो हो गया। अब खाली वर्टिकल ही है, तो अब जो ग्राफ, वो टेबल में बनाने की जरूरत है कि वो जीरो आएगा या फिर वो खाली छोड़ दे?
नहीं उसको तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो छोड़ दो खाली, तो उसको तो करना ही नहीं है, कैलकुलेट भी नहीं करना क्योंकि सर क्वेश्चन में जीजीबी निकाल के करेक्टेड जीजेड निकाल दें उससे बस। करेक्ट जीजीबी लगाया, नीचे जा रहा है इसलिए प्लस, तो प्लस जीजी प्लस 0.9 साइन 0 साइन 10 साइन 20 साइन 30 वैल्यूज निकाली और उसका निकाला। अब जो आपका जो कर्व बनेगा वो कौन से टाइप का कर्व बनेगा? पॉजिटिव है तो सर वो T1 बनेगा ना सर, लिस्ट T1 बन जाएगा, वो T1 बनेगा, उसमें सारी जो वैल्यूज लिस्ट तो है ही, पॉजिटिव रहेंगी तो सारी वैल्यू पॉजिटिव रहनी है, तो इसलिए वो T1 ही बनेगा, T3 होगा ही नहीं। और मान लीजिए सर नहीं भी पता चलता तो जब डायग्राम बनेगा तो वो तो वैसे सही ही बनेगा ना, चाहे कैसा भी ले हम। बिल्कुल ठीक, बट आपको खाली आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा मतलब दिस इज द डिस्टिंक्शन। अगर कोई वेट अथॉर्डशिप मूव करता है तो लिस्ट हो रही है, लिस्ट हो रही है तो T3 बन रहा है। अगर खाली अप एंड डाउन नहीं मूव कर रहा है, अथॉर्डशिप का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो लिस्ट तो है ही नहीं। अगर लिस्ट है ही नहीं तो T3 नहीं है, अगर T3 नहीं है तो फिर T1 ही है। Got it? ओके सर। यस सर। सर So- एक ये चीज पूछनी थी कि जैसे इसमें शिफ्टिंग बोला हुआ था पोर्ट से स्टारबोर्ड, अगर स्टारबोर्ड से पोर्ट बोल रखी हो तो हमारे को पता है कि जैसे पोर्ट लिस्ट होएगी, बट हम ग्राफ इसी तरीके से बनाएंगे और 16 डिग्री के सामने पोर्ट लिख देंगे बस, डायरेक्शन तो उल्टी करने की जरूरत नहीं है ना इसकी? बिल्कुल नहीं, ठीक है सर। बिल्कुल नहीं, ग्राफ आपका यही बनेगा, खाली लिस्ट आपकी जो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है जिस साइड पे वेट मूव कर रहा है बस उसका बोल वो डाल देना, ग्राफ आपका सेम रहेगा। इसी क्वेश्चन में सर एज इट इज हमें केजी दे दी थी, लेट्स से 7.6 है तो 6.6 दे दिया, 1 मीटर कम, तो सर इसमें हम फिर वो करेक्शन वो शिफ्ट वाला भी लगाएंगे, फिर वो जी एच कोस थीटा भी निकालेंगे अगर शिफ्टिंग भी है सर? डिपेंड करता है ना क्वेश्चन में आपका पोर्ट स्टारबोर्ड शिफ्टिंग है कि नहीं है। अगर तो शिफ्टिंग है तो लिस्ट है, अगर आपका कोई वेट शिफ्ट ही नहीं हो रहा है अथॉर्डशिप में तो लिस्ट कैसे आएगी? नहीं सर, मैं इसी क्वेश्चन में कह रहा हूँ सर, जो हमने किया है 400 टन वो शिफ्टेड 10 मीटर। हाँ सर इसमें अगर हमें फाइनल केजी दे दी इन्होंने तो हम बस सर ठीक फिर वो है। कोस थीटा वाला फैक्टर भी निकालेंगे, साइन थीटा वाला भी निकालेंगे और फिर बताइए। वो ऐसे बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल।